Hello students, welcome to your Priya. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, different IITs have started their forms and you have to apply for MTech program, MS program, PhD program in different IITs, right? So I am providing you videos of all the IITs in which I am covering all the details, the entire application procedure, and I will try to cover queries. I generally try to cover all the queries which come to your mind during my video, okay? So now today in this video I am going to discuss about IIT Madras. You know, in IIT Madras you have to apply separately for MS and for MTech, right? So last date for MTech is later, that is in April, so we have time for that, so you can apply for that later also. But for MS program, direct PhD and PhD research program actually, okay, so the date is nearby, it is 31st of March. So you have to be careful and you have to apply before the due date, right? So I am going to discuss all the details regarding this research programs in IIT Madras. First of all, to apply you have to go to this page research.iitm.ac.in, okay? You can write research admissions in IIT Madras. For MTech we have separate website and separate information voucher. All the important points are separately covered. We will cover for MTech separately, right? So in this video mainly focus is on research programs. So here you can see welcome to IIT Madras research admission portal, okay? So portal open from 1st of March and the last date of receipt of online application is 31st of March, okay? So 31st of March लास्ट डेट है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 1 वीक का टाइम है, सो इसलिए आपको इसको करना है अप्लाई, राइट? रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर, राइट? आपको मेल आ जाएगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी बाद में डिसाइड होगा। अब इसमें नया क्या है, एप्लीकेशन फॉर MS PhD प्रोग्राम इज इन्वाइटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके? सो इन्होंने मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है एंड now let us discuss other things. So please remember what page you have to click. So now the intake of PhD candidates is given here in different branch, okay, in different department and in different category. So before applying kindly discuss with your mentors, like we conduct those students who join the paid module of your PhD, right? So we regularly interact with those students. We provide dedicated separate sessions for them, Zoom sessions for them. There we tell them each choice, the priority order, and we handle all their queries, right? Okay, we help in SOP preparation also. Many components are there in this paid post-gate counseling module, okay? So you people, those who have not joined yet, they can also think about this module, PGC paid module, right? So be careful in this. For example, suppose you are in EWS category and we can see in medical science and technology there is only no vacancies there actually in PhD. So don't apply, right? And if there are more vacancies, you should definitely apply, right? So be careful in this also. And then we have for MS also, the intake is given in different categories, how many students, right? They have to take in different branch. So this is given actually on they make this actually on the basis of the previous history, how many students from different category join which program, accordingly they decide, right? So you know in MS program they have started data science and artificial intelligence. So we thank to IIT Madras for including this paper, data science and artificial intelligence, for starting MTech program, MS program and as well as PhD program in this. So in MS program what we see that there are 4 vacancies, 4 seats actually in unreserved category, only 1 in AWS, 2 in OBC, 1 is SC, 0 ST, total 8. So number of seats are less actually in this branch, data science and artificial intelligence. So this is the issue this time with the students who have applied GATE in DA, but let us see in future what happens, okay? So now come to next point. So now we have to go to this admission to MS, direct PhD and PhD by research programs. So let us discuss about application fee, okay?
So application fee is 1000 for general AWS OBC male candidate, okay, and for transgender it is 1000. For female candidates of general AWS and OBC non-creamy layer it is 500, and for SC ST candidate it is 500, for PWD it is 500, okay. So ये application fee है जो आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना है, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सो यहाँ पे अब आएंगे हम इस रिसर्च पोर्टल पे, अब हम एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, राइट. मान लिया आपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रीड कर लिया और आप अगर पीजीसी के स्टूडेंट हैं यूरोपीडिया के, आपको मेंटर्स ने आपको बता दिया कि क्या क्या चॉइस आपको किस ऑर्डर में रखनी है, उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको न्यू यूजर. So you have to click on this option new user, okay, and then you have to fill your details. अगर किसी ने ऑलरेडी सपोज लास्ट ईयर यहाँ पे रजिस्टर किया होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछले साल सपोज रजिस्टर किया हुआ है, सो वो अगर वो ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है तो ये कहेंगे कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके. और सपोज आपका पासवर्ड आप भूल चुके हो पुराना, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके वो रिकवर कर सकते हो, नया पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो. और जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे न्यू यूजर करके आपको डिटेल आ जाएंगी, ठीक है. एक पिन आएगा उसको आप फिल करोगे, राइट, वो मेल में आएगा आपके. नाउ उसके बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है ना. आफ्टर क्लिकिंग न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, देन नेम, ईमेल, पिन आएगा आपको, वेरीफाई पिन, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये डिटेल आपकी आएंगी. पासवर्ड आपको बनाना है एंड वॉट एवर पासवर्ड यू क्रिएट please save that, okay, that is important, don't forget the password, okay. Now come to next. When we log in inside, then we see welcome. Now there are three options, okay, MS, PhD and direct PhD, okay. So तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं. अब यहाँ पे ना एक मैंने स्निप में लिया हुआ इतना पोर्शन, बट इधर साइड में एक आपको दिख रहा होगा सिंबल होम का, होम. सो वो आपको यूज आएगा होम वाला सिंबल, ठीक है ना. वो क्यों यूज आएगा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसमें कि एमएस पे आपने क्लिक किया, एमएस का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और वापस अगर आप उसको कंप्लीट करके, ठीक है ना, वापस आना चाहते हैं इसी पेज पे, तो वो होम से आ जाएगा, ठीक है, होम पे क्लिक करके, राइट. सो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, एमएस में करना है या पीएचडी में करना है या डायरेक्ट पीएचडी में करना है, उस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप अंदर एंट्री करेंगे, ओके. सो सपोज मैंने एमएस पे क्लिक कर दिया, राइट. अच्छा, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने. एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क्स शीट्स, अदर एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च प्रपोजल इफ रिक्वायर्ड बाय एनी डिपार्टमेंट. सो इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट, दे आर आस्किंग फॉर एसओपी. 1000 कैरेक्टर का एक एसओपी मांगा है और 1000 में मतलब शॉर्ट में आपको लिखना है. तो ये एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फाइनल कॉल आने में, ठीक है ना. आपको जो इंटरव्यू कॉल आएगा उसमें एसओपी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. सो यूरोपीडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पेड स्टूडेंट्स, उनको एसओपी प्रिपरेशन में हेल्प किया जाता है प्रॉपर तरीके से, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सपोज मैंने एमएस पे क्लिक किया, सो देन यहीं पे नीचे, उसी के नीचे पीछे आ रहा होगा ये, इसको भी हम क्लिक नहीं करते, आगे चलते हैं. कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना. तो जब हम लॉग इन करके ना, ये पेज भी हमें एक बार जब हम एमएस पे क्लिक करेंगे, सो ये पेज ओपन होगा इस तरीके का. इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि रेजिडेंस, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बीटेक एप्लीकेंट फ्रॉम CFTIs विद ए CGPA ऑफ 8 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MS प्रोग्राम विदाउट वैलिड गेट स्कोर. सो CFTI वाले बच्चों की तो किस्मत खुली हुई है इस बार, बिकॉज सारे IIT दिल्ली हो, IIT मद्रास हो, ISC हो, सभी IIT ने CFTI के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन इस बार दिया है गेट एग्जाम में. पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ ही IIT ये रिलैक्सेशन देते थे, मेनली IIT ग्रेजुएट के लिए होता था, बट इस बार सारे CFTI जो भी हैं, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उन सारे स्टूडेंट की, बीटेक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है IITs में एंट्री करने की. विदाउट गेट भी वो जा सकते हैं, ओके. सो इसमें जो रेजिडेंस टाइप है फुल टाइम, देखो आपके लिए जो गेट के बेसिस पे या CFTI के बेसिस पे जाना चाहते हैं एमटेक करने के, MS करने के लिए, सॉरी MS करने के लिए, सो उनको जो यहाँ पे कैटेगरी रहेगी फुल टाइम वाली, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो HTRA है, ठीक है ना, और इंस्पायर, NBHM, प्रोजेक्ट NSTRA, ये अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट के मोड है, ओके. अब इसमें सभी में आप देख सकते हैं UG डिग्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है.
फुल टाइम आप करना चाहते हैं एमएस तो यूजी डिग्री इज रिक्वायर्ड, पीजी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब आपने बीटेक करा होना चाहिए, बी करा होना चाहिए, लेकिन एमटेक जरूरी नहीं है, राइट। अब इसमें गेट की रिक्वायरमेंट किस में है, अगर आप HTRA के लिए जाना चाहते हैं HTRA, सो गेट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। या ये जो दूसरी फेलोशिप है या इंस्पायर है या NBHM है या प्रोजेक्ट के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि अगर प्रोजेक्ट के थ्रू भी जाना चाहते हैं उसमें भी गेट रिक्वायर्ड है, प्रोजेक्ट में भी, ठीक। साथ में एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका एक्सपीरियंस 6 months और मोर इन एन IIT मद्रास प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय फैकल्टी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब IIT मद्रास के किसी प्रोफेसर के अंडर में आपने 6 months का अगर प्रोजेक्ट किया होगा, मिनिमम 6 months का, तो उसके लिए है ये प्रोजेक्ट कैटेगरी, ठीक है ना। एक्सपीरियंस चाहिए ये वाला, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है ना। और एक है प्रोजेक्ट NSTRA, यहाँ पे NSTRA प्रोजेक्ट, ये भी किन के लिए है, इसमें केवल बीटेक चाहिए और इसमें गेट भी रिक्वायर्ड नहीं है NSTRA के लिए। मतलब आप विदाउट असिस्ट स्कॉलरशिप आप जाना चाहते हैं, NSTRA कैटेगरी में जाना चाहते हैं ना, ये तो वहाँ पे गेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन 6 months का आपको प्रोजेक्ट किया होना चाहिए IIT मद्रास में, ठीक है। और एडवाइजर का नाम आपको बताना पड़ेगा और प्रोजेक्ट नंबर बताना पड़ेगा कौन सा है वो यहाँ पे, राइट। सो NSTRA प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी IIT मद्रास में, ओके। नाउ बाकी कैटेगरीज हैं इसमें बहुत सारी, एक्सटर्नल, पार्ट टाइम, सो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में क्योंकि मेनली हमारे स्टूडेंट्स के लिए यही है, ठीक है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो इसमें सेम कुछ और कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ सेम PhD के लिए आ जाते हैं, PhD एडमिशन रिक्वायरमेंट। सो PhD एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपको मेनली जो जिन्होंने MTech किया हुआ है, ठीक है ना, मास्टर्स किया हुआ है, राइट, उनके लिए है PhD वाला ऑप्शन, या उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है PhD के लिए, ठीक है। तो इसमें भी मेन कैटेगरी तो यही रहेगी HTRA, जो आप बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, फुल टाइम। इसमें UG एंड PG दोनों चाहिए, ओके, लेकिन गेट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो PhD के लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है गेट कंपलसरी नहीं है, राइट। बट अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं NSTRA में या STRA में, दोनों में प्रोजेक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे भी आपको गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। ये यहाँ पे ध्यान से देख लो, PhD करना चाहते हैं अगर आप, ठीक है ना, मास्टर्स किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे अगर इन दोनों कैटेगरी के थ्रू जाएंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये है डायरेक्ट PhD। अब डायरेक्ट PhD में क्या है, फुल टाइम रेगुलर करना चाहते हैं डायरेक्ट PhD, ओके। सो इसमें STRA पे मेनली फोकस रहेगा हमारा, STRA जिसमें मेनली स्टूडेंट जाना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसमें हाफ टाइम जो आपका इसको वो मिलता है ना, यहाँ पे रेजिडेंट असिस्टेंटशिप मिलता है। तो UG चाहिए, PG नॉट रिक्वायर्ड, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट PhD के लिए अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो MTech की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बीटेक बेसिस पे डायरेक्ट जा सकते हैं, बट गेट इज रिक्वायर्ड। सो डायरेक्ट PhD में उन्हीं का एडमिशन होगा जो बीटेक होल्डर प्लस विद गेट है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और जो प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, गेट चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट NSTRA के लिए गेट नहीं चाहिए, बट दोनों कैटेगरी में 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका मिनिमम 1 year का, देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट PhD, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब एक यहाँ पे ना IDRP, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम। सो IIT मद्रास रन करता है एक IDRP। IDRP क्या होता है, 2 स्टेज का प्रोसेस है। एक स्टेज का उसका अलग से गूगल फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना, IDRP पे जाके, और दूसरी स्टेज वो गूगल फॉर्म भरने के बाद सेकंड स्टेज में हम यहाँ पे आते हैं। इसमें जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे IDRP आता है ऑप्शन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम, ओके। सो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। नाउ जब हम अंदर जाएंगे उसके बाद लॉगिन करके, सो ये हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब इसमें देखो पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल्स, अप्लाई टू डिपार्टमेंट, योर एप्लीकेशन, उसके बाद आगे पेमेंट पे जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, वापस लॉगिन करके उसी लॉगिन आईडी से एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ओके। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई मोर देन 1 फॉर्म,
सेम लॉगिन से। ओके, नाउ ये पर्सनल डिटेल आप लोग भर लेंगे, एकेडमिक डिटेल्स भर लेंगे, वर्क एक्सपीरियंस कर लेंगे। अप्लाई टू डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसको हम अगर अंदर चलते हैं, क्या आता है क्लिक करने पे, यू कैन गो टू एनी पेज, ठीक है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, वो आपको दिख जाएगा। तो ये ईजी है समझने के लिए, आप कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। नाउ अब इसमें जब हम अंदर जाते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट में हम लिखेंगे वही STRA, ठीक है ना, और रिसर्च प्रोग्राम पे कुछ नहीं करना, क्लिक करेंगे बस, यहाँ पे एक लिखा आएगा डिपार्टमेंट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट पे, तो जिस डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे डिपार्टमेंट की, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो डिपार्टमेंट आप चूज़ कर लेंगे, राइट। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन है, सो दैट इज़ वेरिंग, मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। लाइक इन इलेक्ट्रिकल आपके पास 6 चॉइस हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, बट आप 2 ही चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी चॉइस आप फिल कर सकते हो वो अलग अलग है, और अवेलेबल चॉइसेस भी अलग अलग हैं सभी डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना है, बस एक डिपार्टमेंट में गए उसकी चॉइस उसी फॉर्म में आ जाएंगी सारी, राइट। जैसे मैंने क्लिक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, ओके, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने चूज़ किया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेफरेंस 1 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेफरेंस 2 ये ऑप्शन आया, राइट। इसका मतलब MS में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं केवल 2 चॉइस दे सकता हूँ। अब ये 2 चॉइस कौन सी होंगी, अगर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो 6 ऑप्शंस आएंगे, EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, EE6, 6 ऑप्शन आएंगे। अब उसमें से 6 में से 2 चूज करनी है, वहाँ पे आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो योरपीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ये फॉर्म फिलिंग करने में और चॉइस फिलिंग करने में कि कौन सी चॉइस आपको रखनी है। ओके, सो ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट का रहेगा। नाउ एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, आपसे पूछा जाएगा अप्लाई करते टाइम पे, IIT मद्रास में एक रिसर्च पार्क है, ठीक है ना, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप रिसर्च पार्क में जॉब के साथ आप MS कर सकते हैं, पार्ट टाइम MS या पार्ट टाइम PhD। ओके, सो इसमें पूछा जाता है आपसे कि आप किस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, राइट। जैसे ऑप्शन A क्या है, आई प्रेफर ओनली फुल टाइम MS। अगर आप वर्क नहीं करना चाहते वहाँ पे, आप सिर्फ अपने MS पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, फुल टाइम MS करना चाहते हैं, देन यू विल क्लिक दिस ऑप्शन A। एंड अगर आप पार्ट टाइम MS साथ में जॉब करना चाहते हैं IIT मद्रास रिसर्च पार्क में, देन यू कैन क्लिक B, ठीक है ना। और दोनों ऑप्शन पे भी टिक कर सकते हो कि दोनों में जो मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाता है ये तो आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा सकते हो। सो ये रिसर्च पार्क इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर रनिंग मैनी कंपनीज देयर, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काफ़ी बच्चों को मिलता है एंड दे कंप्लीट देयर MS आल्सो देयर, राइट। सो ईदर ऑफ द टू टाइप, मतलब दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ SOP रिक्वायर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1000 कैरेक्टर्स। सो आई होप कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी IIT मद्रास के MS प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम से रिलेटेड, डायरेक्ट PhD प्रोग्राम से रिलेटेड, वो यहाँ से मिल चुकी है। और इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन ईजिली अप्लाई। ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है तो 9 PM पे योरपीडिया के फ्री सेशंस भी रहते हैं यूट्यूब पे, सो उस यूट्यूब सेशन में आके अपने चैट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, राइट। आज भी वो सेशन होगा, डेली रहता है, तो आप आ सकते हैं उसमें। ओके, और बाकी डेडिकेटेड पर्सनल गाइडेंस के लिए यू कैन ज्वाइन पेड मॉड्यूल ऑफ योरपीडिया पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, ऑल द बेस्ट।